Yeah, so this is a beautiful view, and I'm heading towards day one of Tirupura, and we are heading just above northeastern areas. And look, it's full of rain, clouds, and so it's really beautiful. And this is Brahmaputra and Ganga's what do you call Sangam. यहाँ पे Brahmaputra Ganga meet. So we are above Bangladesh, and this is my place where I'm staying. It's Hotel Polo Tower, and I've got ready for my lunch. And let's go. It's an amazing hotel. One can stay over here. And look, ready with the boots and all. I've taken shower, so it was a long flight from Delhi, and I'll do some posing. ये तो चलता ही रहता है मेरा method. Here and there, as if I'm Miss Universe. But look, let's go to Montang Valley. So जो अब आप देखने वाले हैं वो सबसे I think best place है तिरुपुरा का. And Tirupura has full of Bengali culture, and this is Montang Valley, and look at me, that air. हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए you have to walk a lot. You have to walk 2.5 kilometers. थोड़ी सी चढ़ाई है because due to weather, monsoon, बीच में road टूट गया था, so we have to park our car down below, and we came walking on the uphill. And look at me. ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं ही princess हूँ कहीं पे. I don't know where. And just look at that sunset. ये यार मेरा सिर में. And let's do less of talking and more of watching. And the breeze in the air, and everything was so nice and magical. And इस टाइम पे ही लग रहा था कि मैं दिल्ली या मेट्रो सिटी या बॉम्बे में क्यों रहती हूँ. बस हम तो नहीं रहना, यहीं बसूँ. और जो फीलिंग आ रही थी, it was out of the world. After 2.5 hours of long flight from one end of the India to another end, this was a place worth watching for. And Montang Valley is something आप पूरा तिरुपुरा almost western part of तिरुपुरा देख सकते हो. And I'm just trying to hide. और ये आई मेरी मॉम पीछे से चलते हुए, एंड दैट वन वाज आवर ड्राइवर. लोकल ड्राइवर था हमारा यहाँ का, जिसने काफ़ी हेल्प किया. और हमारा गाइड कम ये कहावत आपने सुनी है, एक तरफ खड्डा तो एक तरफ खाई. ये वहीं पे खड़ी हूँ मैं. कहाँ जाऊँ, एक तरफ खड्डा है और एक तरफ खाई है. आई मीन a right example. So look at that view. This was just on the top. And what is Montang? It's also called Mountain of Peace. You know, it's main tourist attraction towards Khowai district in Tirupura. Look at the district, and it is so beautiful. Lush green hills. जैसे हिमालयन रेंजेस हमने यूजुअली बीइंग अ नॉर्थ इंडियन देखी है. ये हिल टॉप पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो इस टाइम पे बंद था बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन. बट कुछ इन लोगों ने हमारे लिए चाय बिस्किट का तो बंदोबस्त कर ही दिया था. एंड लुक एट दैट सनसेट. क्योंकि ये वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, तो सनसेट जल्दी होता है. एंड लुक एट द व्यू. आप कैन फील दैट मैजिक. एक्चुअली इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, पर्टिकुलरली इट्स फ्लोटिंग क्लाउड्स. आप देख सकते हो पीछे से. एंड इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन बाय द टूरिस्ट. And it is also called Athamura Hill Range, and it is about 80 kilometers from Agartala, so you can definitely visit this place. So it is also called Mountain of Peace. And when you go
do, and that's my mom, and she's having a photo with the sun. And so it's getting a little bit late, and we have to head back towards Agartala. And there comes my mom, and she's just chilling out, and I asked her to smile, and she's like, yay. And this is the place. So this is the local Tirupuri community calls it Mountain of Peace. Yay, mama, smile. Make your mountain clean and green. So this is what my mom is adding. And now we are back in the evening to our Agartala, and there we go. Ha ha ha. So this is called Gandhi Gram Tirupura Park. It's also called, you know what is great about this park? You can see small sculptures and tourist places where you can see Mir Mahal Palace and Ujanta Palace, where you can go all the places where you can visit in Tirupura. इस पार्क में पूरा सबका छोटा छोटा डिपिक्शन है. So you should definitely visit this park before traveling towards Tirupura. तो ये हमारा सेकंड डे, और ये मैं लहराते हुए आई. आप देख ही सकते हो किस चीज़ के लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट फेमस है. दैट इज़ फॉर टी गार्डन. यस, चाय के बागान, जो जिसके लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट असम दार्जिलिंग चाय एक्सपोर्ट होती है, ऑल ओवर इंडिया जाती है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमारे यहाँ पे चाय की पत्तियाँ मिलती हैं. एंड लुक एट दैट. अगर आप चाय के बागान नहीं आए तो आप नॉर्थ ईस्ट क्या ही आए. आई मस्ट से, ओह आई एम अबाउट टू फॉल. कुछ ज़्यादा ही मैं मस्ती कर रही हूँ, बिकॉज इट्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ अगरतला एंड त्रिपुरा, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल. एंड ये बनाई मैंने एक और अपनी रील स्लो मोशन में. एंड हियर आई एम कमिंग रनिंग एज इफ मेरे लिए कोई दूसरे एज पे वेट कर रहा हो. बट इट वॉज नन अदर देन माई मॉम एंड द सन, द लश ग्रीन. आई मीन चाय के बागान में कुछ नहीं मिलता, बट आपको जो दूर तक उसकी फार्मिंग है, उसका चार्म है, दूर तक फैला हुआ रहता है. यू फील लाइक यू आर इन सम काइंड ऑफ अ ड्रीमी लैंड. आपको दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिखता. सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पीस मिलता है. हाँ, चाय के बागान में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप ऐसी ऐसी रील बना रहे हो, जस्ट बी श्योर. क्या ले रहे वीडियो? तो हाँ, ज़रूर स्नेक से बच के रहना. एंड दीज आर द लेडीज़ हु आर वर्किंग इन दी टी गार्डन. और ये कैप पहनती है सन से प्रोटेक्शन के लिए. और ये एक मुझे मेरा बंदा मिल गया बैठा हुआ, तो मैंने उससे सोचा थोड़ा किसी कर लूँ और थोड़ी चाय की सुगंध सुन लूँ. आई एम अ टी लवर, सो आई लव टी. एंड हियर कम अ सेल्फी विद माई मॉम. लुक, वी आर स्वेटिंग बट वी आर एंजॉइंग. एंड ये एक बेचारी बकरी दिखी मुझे बहुत क्यूट सी. फिर ये कटने चली जाएगी, बट अभी तो एंजॉय कर रही है. जब तक ज़िंदगी है तब तक एंजॉय करो. एंड हेयर आई पोज. एक पीछे लोटस का बहुत सुंदर सा लेक था. Here comes my behind me. Those are सुपारी ट्री, सुपारी के पेड़ जो यूजुअली गुटखा पान में एंड इनफैक्ट मेडिसिनल यूज भी होते हैं. Those are raw सुपारी. फॉरेस्ट इतना डेंस है कि आई थिंक नीचे तक तो लाइट भी कभी नहीं पहुंची होगी. मैं ऐसी चीज़ें तो मैं ऐसी जगहों के दर्शन करवा रही हूँ वेर यू कैन नॉट, द फॉरेस्ट इज सो डेंस क्या नीचे तक लाइट, कभी ज़मीन तक लाइट टच भी नहीं की. और मेरा ड्राइवर मुझे बार बार बोल रहा था चलो यहाँ से, क्योंकि ट्राइबल एरिया है. सो जब आप ऐसी कोई रील बनाते हैं तो मेक श्योर आप आसपास एक लोक लाइट को अपने साथ ले लें. एंड चाय का बागान ये दूसरा था जो मुझे फिर से मिल गया रास्ते में. एंड मुझे लगा कि मुझे पोस्ट करना चाहिए क्योंकि हर चाय के बागान थोड़ा डिफरेंट था. And this one is another very famous Durgabai tea estate. ऐसे वाले पत्ते ना इसके लोग चॉप करते हैं. आई फील कि कुछ तो इस जगह पे है जो बहुत ही मेस्मराइजिंग है. और इन चाय के पत्तों को बिना लिए हुए ना आप बस आ जाओ, आप वैसे ही डिटॉक्सिफाई हो जाओगे. So this is the Durgabai tea estate. और look at the view. ये वाला टी estate garden जो estate है, टी garden, it is very different from the one which I have shown below. हर उसकी एक अलग पहचान है. So today I am in Agartala and this district has a famous variety of these tea plant. You can see
दिस इज समथिंग कॉल्ड कैमेलिया सिंसेंसिस। अब मुझे जो बताया गया है इस जगह के बारे में और इस टी प्लांट के बारे में, इट्स ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। हमारी ग्रीन टी, ब्लैक टी, येलो टी और कुछ ओलोंग करके चाय का नाम है, उसमें इस चाय को यूज़ किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ इस पार्ट, इंडिया के इस पार्ट में ये टी मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लांट इज कि जब ये इस पर्टिकुलर उसमें ये एवरग्रीन श्रब है इस पर्टिकुलर रीजन में। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ पार्ट म्यांमार का, बर्मा का भी ये प्लांट बनाता है, बट इंडिया में अगरतला, त्रिपुरा, ये सब रीजन में ये प्लांट मिलता है। एंड व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर अस कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है उसके लिए तो अलग ही फील होता है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं इस प्लांट को। और ऑब्वियसली चाय बागान तो हमारे दार्जिलिंग में, असम में फेमस है ही, बट इस श्रब की और इस प्लांट की बात है, ये त्रिपुरा और अगरतला और इस रीजन में इंडिया में पाया जाता है, अदरवाइज म्यांमार में भी पाया जाता है। एंड ग्रीन टी तो पता ही है, हर कोई पीता है। येलो टी, डार्क टी, उसमें ये बहुत फेमस होता है और ये एवरग्रीन रहता है, किसी टाइम झड़ता नहीं है, किसी सीजन में ये हटता नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि वंस यू विजिट सम काइंड ऑफ टी प्लांट, तो या कोई ऐसा बागान आप जाते हो तो रात के टाइम ना जाएं या शाम के टाइम ना जाएं, बिकॉज कहते हैं कि यहाँ पे स्नेक्स बहुत होते हैं। बट घूमने आए तो इतना तो बनता है रिस्क लेना। एंड आई कैन सी दैट ब्यूटीफुल सनसेट, क्योंकि इस टाइम पे 5:30 हो रखे हैं एंड ईस्ट एरिया है तो जल्दी रात होती है। That's it. तो ये एक और वीडियो है। माई मॉम इज कमिंग एंड शी एंजॉयिंग दिस ब्यूटी बिकॉज नेचर किसको नहीं पसंद है। बट हाँ, अगर आपको नेचर के पास हमेशा रहना पड़े देन इट्स अ चॉइस। तो ये पत्ते आप देख सकते हैं कितने फ्रेश हैं एंड इट इज ऊपर के जो लीव्स होते हैं, जो टेंडर लीव्स होते हैं, वो तोड़े जाते हैं। नीचे वाले जो बड़े लीव्स हो जाते हैं वो इतनी अच्छी चाय के लिए नहीं यूज़ करते हैं। वो भी चाय के लिए यूज़ होता है बट फॉर अ लेसर वैरायटी। नाउ दिस is mostly a famous area for tourist location and it is in the Bamtua district of West Tripura and इसका bread taking view भी है। apart from its जो tea leaves होती हैं ज़्यादातर ये वाले एरिया के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। and this particular tea garden was first established in 1960. and do you know something, Tripura stands for like it almost ranks 5th among the 14 tea producing states in our country. So, अब पता चला ये सुबह की चाय कहाँ से आती है। बहुत मेहनत लगती है भाई इसको उगाने में, इसको नरिश करने में। So this is a rubber tree. You can see up, and this is, they break this, and this comes from this place, and you can see from other places also. कि यहाँ से रबर निकालते हैं, इस बाग को they shave it और यहाँ से। And I am in what do you call, Udaipur district. It's in Tripura and it's a tribal area. Come, I'll show you. This is so peaceful and so oh my god, it's a tribal area, completely tribal area. It is so quiet. In fact, I can hear my own voice. And of course leaves. So let's explore more. Come. So come, I'll show you. And look at this whole jungle. This is so peaceful. It is so green. यहाँ के जो पहाड़ और पेड़ है, it's completely different from the north side, from the Maharashtra. I have not explored south yet, but this is completely different and the vegetation is completely different and you can see rice. मैंने मैंगोज देख लिए यहाँ पे, प्लस सुपारी के लंबे लंबे पेड़। I just saw. I'll show you in my video. And rest will continue next. After a hectic day और जब कर लो वापस अब अगर कोई सिर्फ एक कोई
जिसको कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर जयपुर वाला नहीं। सो देयर वाज महाराजा धन्य माणिक्य हु कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल इन 1500। इसके बगल में कल्याण सागर लेक। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये इसको पिथा स्थान भी कहते हैं और ये यहाँ पे फिशेस को खाना खिलाया जाता है। ये होली पॉन्ड है जो शेप ले लेते हैं एक टेम्पल के, एंड दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ कुरमा। जिनने ये टर्टल का आकार ले लिया था, ये जो टॉर्टॉइज आते हैं इनको स्पेशली खाना खिलाया जाता है। द टेम्पल स्ट्रक्चर अपीयर्स टू बी अ मॉडिफाइड बुद्धिस्ट स्तूपा एट फर्स्ट लुक, जैसे आप देख सकते हैं। और टेम्पल का जो फेस होता है फेस इज द वेस्ट, एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज ऑल्सो द वेस्ट की तरफ था। और उसका इन्फ्लुएंस एक्चुअली बंगाल के 4 चाला यानी 4 स्लांटेड रूफ से बना हुआ है आर्किटेक्चर है। एंड दिस इज द वेरी यूनिक प्लेस, एंड त्रिपुरा इसके लिए डिस्टिंक्टली क्लेम किया जाता है कि इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल इतनी इस टेम्पल का बहुत बाकी टेम्पलों से बहुत डिफरेंट है। एंड लुक आई टेक अ सेल्फी, क्योंकि ये टॉर्टॉइस बहुत अनोखा देखा जाता है। और फिर से यहाँ पे गए हम जाम्पुई हिल्स। So this is Jampui Hills, which is about 220 km away from Agartala. It is the highest hill range in the bordering the Mizoram, and it is about 3,000 above sea level. It is famous for its charming landscape and bracing climate and excellent. So this is त्रिपुरा। ये कहते हैं ना वो जंगल में मंगल। यार मेरा ब्यूटीफुल वाटर पार्क, और ये पूरा आप देख सकते हैं हिमालयन रेंज और थोड़ा लो है ये। एंड द पीस of this area is awesome। अगर आना है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता कि आप इंडिया में हो। इट्स नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, बिकॉज यहाँ के ट्राइबल लुक के लोग होते हैं। यहाँ का खाना अलग है, यहाँ का रहना सहना अलग है। मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आप इंडिया में हैं या बाहर हैं। Beautiful Tripura from my eyes. So it is गोलगप्पे को बंगाल और त्रिपुरा साइड को गुपचुप बोलते हैं। So here is my visit to Jagannath Temple at Agartala. Here is the hustle bustle. Look at the people, the crowd, the vibes. So different. साइड और तान सिल्क की साड़ी ना लो, और मैंने भी थोड़ा बंगाली लुक लिया और थोड़ी फोटो खिंचाई अपने होटल आके।
भगवान, देन डांस, देन इनके ये, देन उनका जन्म, देन कृष्ण और राधा, देन दुर्गा माँ,